Students, what we did in the last picture? Sir, Poisson's ratio. Okay, Poisson's ratio. Anybody can define Poisson's ratio, students? Sir, ratio of lateral strain by longitudinal strain. Very good. It's a ratio of lateral strain to longitudinal. Can you give me its mathematical formula? Sir, what? Mathematical formula for Minus. Yeah. Minus difference in diameter upon diameter into original length upon Yeah, bolo, original length. minus difference in diameter into original length upon diameter into difference in length. Okay, absolutely correct. And why do we use negative sign, Ruksar? Sir, because diameter is decreasing and length is increasing. Can it happen vice versa also? If length decreases, will the diameter will increase? If length decreases, will the diameter will increase? Yes, sir. Yes, sir. यानी अगर longitudinal extension होगा, तो there will be lateral compression. ये ध्यान में रखना. Longitudinal extension will give you lateral compression. Lateral, if I happen to speak about lateral elongation, will give me longitudinal compression. Either way, it's possible. That way, but we use negative sign. Okay, what's the value of sigma? So theoretical or practical? Theoretical as well as practical, both. So theoretical it is -1 to 1/2, and practical is 0 to +1/2. Okay, 0 to 1/2. And generally for metal, what exactly value of sigma you take it? 0.3. 0.3, absolutely correct. Okay, okay, then give me the unit. Give me the unit for Poisson's ratio. Anyone can give me the unit for Poisson's ratio? So no unit, it's a ratio of like terms. It's a. So it has no unit. Okay, it's a pure ratio. Why? What's the reason it has no unit? Sir, it is stress by stress, so it will cancel out. What do you say? Stress by stress. Sir, strain by strain. Sorry, sir, it's strain by strain, so it will cancel out. Josh, क्या बोल रहे हो? Sir, by mistake. ऐसे नहीं कर. Okay, it's a ratio of two strains, student. Ratio of two strains we consider. Okay, therefore we consider that as it has no unit we consider. Absolutely correct. Okay. Now we move further, students. I gave you about a composite wire consisting of two cylindrical one, Y1, A1, Y2, A2, and I told you to find out the effective stress in that case. I gave you the mathematical formula. एक spring के हिसाब से भी था, लेकिन I told you that this will be worked out in the session. But I went through the when you look at the questions, there are questions asked on. So let me put forward that concept on the students. Spring का भी I'm making you understand right now only, students. Okay, I'll make you understand right now. It's only for the spring part of it. Okay. Before going for anybody can tell me what is compressibility? So it's the reciprocal of bulk modulus. Very good. And can you give me its unit? So Pascal inverse.
Pascal inverse. Yes, sir. Pascal inverse. Absolutely correct. अभी students ये जो मैं formula दे रहा हूँ students ये formula लिख के रखना. It's not given in a model but this will really help you out to solve few questions also. ये जो है it's a relation between ये जो formula मैं दे रहा हूँ students it's a relation between Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity and Poisson's ratio. ये चारों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन होगा और ये चार फॉर्मूला ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. ओके व्हेनेवर यू सॉल्विंग क्वेश्चंस यू माइट कम अक्रॉस और इसके बेसिक क्वेश्चंस if in case if one ask you they can ask you in terms of your 1 and 2. अगर सपोज मैंने पूछा get me a relation between Young's modulus, नाम से सुना Young's modulus, bulk modulus and a Poisson's ratio. तो इनके बीच में the formula I'll put it, please pay attention students. Y is equal to 3k into bracket 1 minus 2 sigma. This is the equation number 1. Please students, y is Young's modulus, k is bulk modulus, and sigma is Poisson's ratio. ये formula ध्यान में रखना while solving MCQs. Agreed? अगर मैंने पूछा get me a relation between Young's modulus, modulus of rigidity, and Poisson's ratio. यानी y, eta, and sigma students. So उसके लिए what exactly your answer will be? Y is equal to 2 eta in bracket 1 plus sigma. That's the equation number 2. Now suppose if I happen to ask you a relation between y, Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity, then your formula will be y is equal to students 9k eta upon 3k plus eta. Are you getting it? And if in case means these you can get it by using the above two equations itself only, but this is you have to keep in mind for solving questions related to it. And suppose if I ask you get me a relation between sigma, Poisson's ratio, bulk modulus, and modulus of rigidity, then sigma, if in case if I happen to make a subject, then it will be 3k minus 2 eta upon 6k plus 2 eta. These are your 4 mathematical formulas which students should keep in mind. So Please how do do. we get these? These equations we are getting it in terms of your solving the relation between Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity, taking the mathematical formula for a given geometrical shape. Are you getting it? So it's a relation between all three. The first one, the first two, one can easily, and the other two are derived from the first and second itself only. You can consider the two part of it because it gives you the relation between all, and you need to remember this. यानी मेनली अगर तुम देखोगे तो मेन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस होंगे ना स्टूडेंट्स, तो इसमें से ये दो क्वेश्चंस में से पूछते हैं. When you go for advanced point of view, they do ask questions based on to the other third and the fourth one we consider. So students should know these 4 mathematical expressions. Put down all 4 mathematical expressions. What are these terms stands for? Y का मतलब क्या है students? Young's modulus. K का मतलब क्या है? Bulk modulus. Sigma का मतलब क्या है? Poisson's ratio. Eta क्या है? Coefficient modulus of rigidity. इनमें से सारे ये जो Young's modulus है, bulk modulus है, modulus of rigidity, ये सारे elastic constants है, ratio of stress to strain. Sigma जहां पे दिख रहा है वो है Poisson's ratio. Just put down these 4 relations. Done. Can I erase the students?
Rishi, are you late? Sir, I was in the meeting only. I got disconnected. Okay. नीट के लिए भी रुखसार, नीट के लिए भी रुखसार पहले दो के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना। नीट के लिए पहले दो क्वेश्चन के पहले दो के लिए कॉन्सेंट्रेट करना फॉर्मल। Okay, sir. Sir, can you repeat? I couldn't hear you. No, she asking me for NEET. First two equations you can remember it for NEET point of view. So we don't need to learn the third and fourth for NEET. That is what you don't, and because you can easily get the derivation between these two. अगर तुम्हें दोनों मिलेगा तो you can easily get sigma and this. Okay. Yes, sir. The simultaneous equation you will get it and you can solve them. Yes, sir. Can I erase? No, sir. Just 1 second. Okay. Yes, students done. Can I erase? Yes, sir. Okay, students. Can anybody give me what exactly the formula for stiffness is, which I gave it to you all earlier? Anyone? याद आ रहा है? Stiffness. Yes, sir. क्या है formula? अगर मैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखता हूँ y is equal to f by a into L by E. Am I getting it? So what exactly f will be equal to? Ya E by L. So students, what exactly stiffness over here is? Stiffness for a given wire, Ya by L. Is that clear? For a given wire, if I happen to consider, okay? For a given wire, students, your stiffness Ya by L we consider. That's the stiffness. Jill, you gave the relation, Jill, earlier.
Ajil, did you give the relation earlier? तुमने दिया कुछ relation stiffness का? अरे हाँ तो ना बोलो. So Ruksar had given it. Okay, Ruksar, is it clear? Yes, sir. Okay, तो force का मतलब तो y a by L भी consider is E. तो ये stiffness के हिसाब से, यानी ये constant है. Friends, ये जो मैंने लिया है ये constant मैंने लिया है. Material of the wire is constant, area of cross section is constant, length is constant. इसको हम किससे relate करते हैं मालूम है students? इसको हम relate करते हैं with respect to your spring. क्यों? Reason क्या? अभी ध्यान से सुनना students. Suppose if in case if I give you a question, okay, जहाँ पे if in case if I happen to consider there are two wires. Okay, suppose अगर मैंने दो wires तुम्हें दिए हैं, I get, and these two wires are of different Young's modulus, different length and different area of cross section. And if for example ये तुम्हारा rigid support है, I get. ये सोचो कि यहाँ पे मैंने कोई वायर दिया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1, लेंथ L1 है एंड यंग्स मॉडुलस Y1 है. फिर मेरे साथ में दूसरा वायर दिया, एग्रीड, जिसका एरिया A2 है, लेंथ L2 है, यंग्स मॉडुलस Y2 है. I getting it? And I'm subjecting both these particular wires to a particular force, and that force is constant through the entire wire we consider. Agreed? इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ L2 है स्टूडेंट्स. और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन. कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन. Sir, what is that formula you wrote of stiffness? Pardon? Sir, can you repeat that formula of stiffness? YA by L. This I told you long before, my dear. Y is Young's modulus, A is area of cross section, L is a length. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Now students, अभी जब भी दो वायर्स सीरीज में होते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, दोनों वायर्स जब भी सीरीज में होते हैं तो उनका इफेक्टिव स्टिफनेस क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं के इफेक्टिव. इसका फॉर्मूला हमें चाहिए. तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, सिंस द टू वायर्स आर केप्ट इन सीरीज स्टूडेंट्स, उनका के इफेक्टिव विल बी इन पैरेलल, यानी 1 upon k effective of stiffness is equal to 1 upon k1 for the first one plus 1 upon k2. Is this clear? इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा फाइनल आंसर भी क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या होगा सर? k2 plus k1. ध्यान से सुनना, k2 plus k1 upon k1 k2. तो k इफेक्टिव क्या होगा? k1 k2 upon k1 plus k2. Now student will say, sir, what exactly k1 over here is? ध्यान से सुनना, what is k1? K1 is the stiffness of the first wire. What is the stiffness of the first wire? Y1, A1 upon L1. What is stiffness of the second wire? Y2, A2 upon L2. Please students, ये जो part था ना, I told you कि you'll be doing it after SHM. But when I went through it, there are certain questions also given further, और कुछ अच्छे questions दिए हुए consistency में. So rather than not doing it now and then later on it becomes, ये बहुत सारे questions तुम lose करोगे इसकी वजह से. और ये छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं सिखाऊंगा. एसएचएम पहले मैं सिखा रहा हूँ, इसके साइमल्टेनियस में एसएचएम सिखाऊंगा मैं. दूसरे टॉपिक एक छोटा सा कंसेप्ट उठा रहा हूँ मैं, और वो इसके साथ में रिलेट करूंगा मैं. तो दैट विल बी स्टिल वेल क्लियर. लेकिन यहाँ पे अभी मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है. तो ये फॉर्मूला क्या दिया है मैंने? तो तुम्हें ये बोलना है कि सर आपने ये बोला है कि अगर दो वायर्स लेते हो, दोनों वायर्स का लेंथ अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, दोनों का मटेरियल अलग अलग है, और अगर दोनों को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लिया है तो सर उनका के स्टिफनेस इफेक्टिव क्या होगा? k1 k2 अपन k1 प्लस k2. अभी k1 की वैल्यू मालूम है, k2 की वैल्यू मालूम है, तो k इफेक्टिव तो मिल जाएगा. ऑफ कोर्स k1 क्या है? तो दिस विल बी y1 a1 अपॉन l1 इनटू व्हाट? y2 a2 अपॉन l2 डिवाइडेड बाय y1 a1 अपॉन l1 प्लस y2 a2 अपॉन l2.
Now can you solve and get a common answer for this? Agreed students? हाँ कि ना? ये देखो अगर मैं इसका LCM निकालूंगा स्टूडेंट्स तो L2 यहाँ पे चला जाएगा, L1 यहाँ पे चला जाएगा। एग्रीड? तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? Y1 A1 L2 प्लस Y2 A2 L1 अपॉन व्हाट? L1 L2। न्यूमरेटर में क्या होगा? Y1 A1 Y2 A2 अपॉन L1 L2। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अरे हाँ या ना तो बोलो स्टूडेंट। Yes, sir. तो यहाँ पे कैंसिलेशन क्या हो रहा है सर? ये कैंसिल हो रहा है ना? Yes. तो Yes, दो cancel हो रहा है कि नहीं हो रहा है? sir. Cancel हो रहा है। तो now can I say my key effective का आंसर क्या होगा? So now my key effective का आंसर I'm getting it. So stiffness effective. Stiffness हमेशा stiffness पे ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, भूल मत जाना। Stiffness effective किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है फॉर्मूला? Your answer will be y1 a1 y2 a2 upon y1 a1 l2 plus y2 a2। Sir, क्या हुआ? sir, how did we get that formula 1 by k EF equal 1 by k1 plus 1 by k2? Because this is in series. That's a formula where I'm picking it up directly. ये सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहाँ से उठा मालूम है स्टूडेंट्स? अभी देखो ये एनालॉग के लिए चला जाता है। मतलब सर आपने जो फॉर्मूला उठाया कहाँ से उठा? तो ये जो फॉर्मूला उठा है स्टूडेंट्स, इट गोज ध्यान से सुनना, इट गोज बाय एनालॉग। एनालॉग का मतलब क्या? इन करस्पॉन्डेंस आइडेंटिकली इनटू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ फिजिक्स कॉल्ड एसएचएम। अभी ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे मैं डिराइव करूंगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे मैं डिराइव करूंगा ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे चिपकाएंगे। कट पेस्ट हो रहा है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो रहा है, कट पेस्ट होके हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा एसएचएम पहले आता है स्टूडेंट्स, एसएचएम वेव्स पहले आता है, देन योर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विल कम इन दैट केस। वैसे भी होता है। अभी ध्यान से सुनना, लेट अस गो फॉर दिस। अभी ये क्या मतलब ये इज दिस मच क्लियर ऑल ऑफ यू ऑल? ये क्लियर हुआ तुम लोगों को सबसे पहले? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने पूछा स्टूडेंट्स स्टिफनेस का यूनिट क्या होगा, व्हाट्स द यूनिट ऑफ स्टिफनेस, तो स्टूडेंट को वाइज एंड स्मार्ट से तो स्टिफनेस का यूनिट तो ये सामने आपने दिया है। ये स्टिफनेस आपने बोला है y a by l, तो स्टिफनेस का यूनिट क्या होगा? तो यंग्स मॉडुलस तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, एरिया मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, बचा लेंथ, तो कहने से न्यूटन मीटर इनवर्स, है ना? Yes, sir. है ना स्टूडेंट्स? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेम यूनिट, एग्जैक्टली सेम यूनिट एसएचएम में किसको मिल रहा है? रिस्टोरिंग, सॉरी एसएचएम में किसको मिल रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट, और वहां पे भी इसको वेरिएबल के देते हैं। अब ये कैसे आता है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना। Restoring force students is given by the formula negative k into x. Restoring force is equal to negative kx. तो k क्या हो जाएगा? k बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो k क्या हो जाएगा सर? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। एग्रीड? अभी देखो रिस्टोरिंग फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। लेंथ का क्या है? मीटर। तो कहने से दिस इज न्यूटन मीटर इनवर्स। ये भी क्या है? यानी स्टूडेंट्स जो स्प्रिंग कांस्टेंट हम एसएचएम में बोलते हैं ना, स्प्रिंग कांस्टेंट हम एसएचएम में बोलते हैं, दैट स्पीक्स अबाउट मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। exactly by analog identically this Newton per meter inverse in properties of matter for wire is called stiffness. दोनों का यूनिट सेम है। यहां पे इसका वेरिएबल के है
यहाँ पे भी इसका वेरिएबल के दे दिया, ये वायर्स के लिए चला गया, ये स्प्रिंग्स के लिए चला गया। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये जो स्टिफनेस है किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? सब मटेरियल तो हाँ ना, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, व्हाई नॉट, वाई आ गया ना, यंग्स मॉडुलस आ गया। यहाँ पे भी देखो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब इसका कैसे एक्सप्लेनेशन करोगे? ध्यान से सुनना। टू स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। दो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बोला था। दोनों ने स्प्रिंग यूज किया है, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, दोनों ने सेम लोड सब्जेक्ट किया है, सस्पेंडेड किया है, लेकिन एक का स्प्रिंग नया वाला है और दूसरे का 3 साल पुराना। और फिर दोनों ब्लॉक को तुमने नीचे की तरफ खींचा एंड देन यू रिलीज इट. You pull this particular block in the downward direction and then you release it. What's going to happen? The blocks are going to perform SHM. Why? Because the spring is going to go up and down. The blocks are also going to move up and down. That means they are going to perform simple harmonic motion. Now my question to you all students, कौन से spring में तुम्हें block ज़्यादा oscillations करते हुए दिखाई देगा? The one which is an old one 3 years or one which is new? Sir, I didn't understand what you asked. Pardon? Sir, can you repeat it, sir? Where's the concentration, my dear? No, sir. Anybody knows? listened. Wait a minute. Anybody who knows what exactly I've put forward? मैंने क्या question पूछा? Anyone? Anybody else? What did I ask? Yes, any of you all who recollect what am I asking you? Yes, anyone? Kunj, what about you? Om Shinde, Rishi, Ruksar, Vibhavri. क्या पूछा मैंने? कुछ पता चला मैंने क्या बोल रहा था मैं? Yes, sir. क्या बोल रहा था मैं, रुखसार? Sir, two springs, one is 3 years old and one is new. Both are attached to masses, and if we pull it, both the masses, if we pull it, then both will perform simple harmonic motion. So my question was, if I try to move the block to oscillate, which block will undergo more oscillations? The one which is connected to a new spring and one which is connected to the old one. कहाँ पे तुम्हें oscillations ज़्यादा मिलेंगे? New. Of course, क्योंकि वहाँ पे stiffness ज़्यादा होगा, तुम्हारा elasticity ज़्यादा होगा वहाँ पे. Elasticity का मतलब क्या? Tendency for body to what? Resist any change. Resist any change, हाँ? Resist. Okay, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, स्टिफनेस ज़्यादा होगा, तभी जाके वो ऑसिलेशन अच्छी तरह से करेगा. वही अगर तुम दो अलग मटेरियल के स्प्रिंग्स ले लो, सेम ब्लॉक ला लो, दोनों का स्प्रिंग का लेंथ ले लो, तो कहाँ पे किसका के ज़्यादा होगा, किसका के कम होगा? तो ये जो हम स्टिफनेस वायर के अंदर देखते हैं, एग्जैक्टली एन आइडेंटिकल टर्म वी कंसिडर as spring constant, a kind of a stiffness in springs. Or you just and why am I going by analog? Why am I going by analog? Because the units are same. That means they are dimensionally correct. Both these expressions are dimensionally correct, we consider. But mathematically, if I happen to consider this case, may not be. That means they are equivalent, but they're not equal. I repeat, stiffness in wires and spring constant in springs, they are dimensionally same, but may not be, mathematical expressions may not be same in that case. जैसे कि तुमने पढ़ा होगा in that case कि if I happen to consider different types of strains we consider.
all are dimensionless quantity, लेकिन longitudinal strain is different, volume strain is different, and shear strain is different. सबके dimensions does not exist. L raised to 0, M raised to 0, T raised to 0, लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन तीनों strains ही है. वैसे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने वायर्स लिया है, दो वायर्स अगर मैंने लेंथवाइज रख दिया है, तो दोनों का अगर इफेक्टिव स्टिफनेस सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आएगा, तो वो कहाँ से आया? दैट सेम क्वेश्चन वाज पुट फॉर बाय जज. तो मैंने स्प्रिंग्स के ऊपर गया. तो स्प्रिंग्स के अंदर देखो, तो स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव साइन क्यों दिया मैंने? व्हाट इज द रीजन फॉर द नेगेटिव साइन? क्योंकि ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई स्प्रिंग लेता हूँ, ओके, और ये मैंने लोड कनेक्ट किया, अगर मैं स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचता हूं, तो अगर अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स. सेम थिंग, जब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, तो इस तरफ कौन सा फोर्स जा रहा है? यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स जा रहा है. एग्रीड? तो अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. And what is this restoring force? The restoring force will reach to maximum kabhi. Restoring force, students, will reach to maximum when displacement is maximum. Displacement, अगर suppose मैंने स्प्रिंग को बहुत लंबा खींच दिया, तो restoring force maximum होगा. Direction will be directly proportional. And where exactly it's always directed towards the mean position. इसलिए दोनों का direction opposite है. ध्यान से देखना. देखो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स? ब्लॉक किस तरफ तुम खींच के लेके जा रहे हो? नीचे की तरफ लेके जा रहा हो. एक्स अगर इस तरफ जा रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ जा रहा है? यानी ये जो नेगेटिव साइन जा रहा है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में. तभी जाके मैंने नेगेटिव में डाल दिया. अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालते हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? के आएगा. अभी तो मुझे पूछोगे सर ये के का मतलब क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? हम स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो के को मैं क्या बोलूंगा? स्प्रिंग कांस्टेंट. दूसरा नाम इलास्टिक कांस्टेंट. तीसरा नाम फोर्स कांस्टेंट. तुमने मुझे पूछा सर ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो मैंने बोले वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा. अलग मटेरियल के अलग स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी अलग अलग मटेरियल के अलग अलग स्टिफनेस, अलग अलग इलास्टिसिटी. वही वायर्स के अंदर भी होता है स्टिफनेस. यहाँ पे स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या है? YA/L, इसका भी यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स. यहाँ पे स्टिफनेस को कैसे लिखते हो? क्या लिखते हो? उसका भी यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स. अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यानी यहाँ पे की इफेक्टिव स्टिफनेस का है, यहाँ पे की इफेक्टिव क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट का इफेक्टिव. अभी ध्यान से देखो, अभी सपोज मैंने दो स्प्रिंग्स लिए. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. सपोज इफ आई गिव यू टू स्प्रिंग्स, तो बताओ दो स्प्रिंग्स, जैसे दो बार यहाँ पे दिए थे वैसे दो स्प्रिंग्स. What do you see, sir? It has different stiffness. Did this wire had different stiffness over here? Yes. Does it have different spring constant? Yes. इसके अंदर एक्सटेंशन तुम्हारा x1 है, इसके अंदर एक्सटेंशन x2 है. लोड सेम है, लोड यहाँ पे भी फोर्स सेम था, यहाँ पे भी फोर्स सेम है, यानी दोनों केस में फोर्स सेम है. स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? Are you getting it? Yes, sir. तो अभी अगर किसी ने पूछा चलो सर मुझे यहाँ का फॉर्मूला निकाल के बताओ ये कैसे आता है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना. Students, is this much part of the board visible to your dotted line? Yes, sir. Yes, sir. Okay, अभी यहाँ से मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जब ये फोर्स लगेगा, तो कहना चाहिए स्प्रिंग विल अंडरगो एन एक्सटेंशन. तो अगर मैं बोलूँ टोटल एक्सटेंशन, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, टोटल एक्सटेंशन इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 1 प्लस एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2. क्या ये सही है? Yes, sir. ये तो है कि नहीं? तो अगर मैंने बोला कि दोनों बार मैंने लोड कर दिया है, तो इसके अंदर तुम्हारा इलॉन्गेशन E1 है, इसमें इलॉन्गेशन E2 है, और मैंने बोला एक कंपोजिट वायर दे दिया, टोटल इलॉन्गेशन इज 1 मिलीमीटर, तो तुम क्या लिखोगे? E1 प्लस E2 इज इक्वल 1 मिलीमीटर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. प्लीज ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू रिएक्ट टू इट. तो यहाँ पे भी टोटल इलॉन्गेशन मेरा x1 प्लस x2 होगा.
तुरंत तुम्हारा दिमाग चलने चला सर एक्स इज एक्स प्लस ये टोटल इलॉन्गेशन है, तो टोटल इलॉन्गेशन यानी एक्स, तो एक्स को मैं कैसे लिखूंगा सर, एक्स को मैं लिखूंगा एफ बाई के, यानी ये टोटल, ये तुम्हारा के इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि टोटल के लिए चला गया, डिफरेंस है टोटल के लिए चला गया। x1 क्या होगा, एफ अपॉन के वन, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वन है, ये क्या होगा एफ अपॉन के टू। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने F1 F2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर दोनों केस में फोर्स तो सेम है, ये स्प्रिंग लो या ये स्प्रिंग लो, दोनों को तो फोर्स सेम लग रहा है। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. ये टोटल फोर्स, ये टोटल के इफेक्टिव फोर्स इन द फर्स्ट वन, के इफेक्टिव इन दिस फोर्स इन सेकंड। एफ को निकाल दो बाहर, एफ कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन के इफेक्टिव इज 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। ये तुम्हारा फॉर्मूला कहाँ पे तुम डिराइव करोगे, चैप्टर SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको बाय एनालॉग कहाँ पे यूज कर रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। फर्क क्या है दोनों में, फर्क यही है कि ये स्प्रिंग मॉडल में चला गया और ये वायर्स के अंदर चला गया। यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक कांस्टेंट को हम लोग के बोलते हैं, यहाँ पे वायर्स के अंदर स्टिफनेस को के बोलते हैं। लेकिन दोनों केस में के किसके ऊपर डिपेंड होता है, मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल ऑफ स्प्रिंग्स, यहाँ पे मटेरियल ऑफ वायर। जब यहाँ पे के इफेक्टिव सीरीज के लिए 1 अपन के वन प्लस 1 अपन के टू हो सकता है, तो यहाँ पे के इफेक्टिव सीरीज के लिए क्या होगा, 1 अपन के इफेक्टिव इज 1 अपन के वन प्लस 1 अपन के टू। लेकिन इस स्टिफनेस का फॉर्मूला है, पूरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैं गॉट y1 a1 y2 a2 अपन y1 a1 l2 प्लस y2 a2 l1। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. यही चीज अगर सपोज मैंने सीरीज में दी होती, दो स्प्रिंग्स को मैंने सीरीज में, तो उनका के इफेक्टिव तुम डिराइव करोगे, उसका आंसर क्या होगा, के वन प्लस के टू। वैसे ही तुमने अगर कंपोजिट वायर को हॉरिजॉन्टल रखा, I get it. Sorry, not this is in series. Parallel. Very sorry, not series. Parallel. Parallel. अगर मैं दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में रखा, यानी डायग्राम ऐसा होगा, आई डोंट हैव स्पेस, लेकिन अगर मैंने ऐसे डायग्राम किया, एंड नाउ इफ आई कनेक्ट अ लोड टू इट, आई कैन डिराइव इट। इसका आंसर क्या होगा, ये K1 है, ये K2 है, हाउ आर दीस टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड पैरेलल, तो इसका के इफेक्टिव का आंसर क्या होगा सर, इसका के इफेक्टिव इज K1 K1 प्लस K। plus K2. वैसे यहाँ पे तेरे दो वायर्स है, एक मोटा वायर ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पतला वायर ले लो। हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम रखा मैंने अभी, and then connected to a common load. How are these are connected? They are connected in parallel. Then in that case, what exactly K effect over here? Over here also will be K1 plus K2. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Do you want me to put down or shall I erase this? Josh, is it clear with you now or not yet? Yes, sir. Now it is clear. Okay. You shall I keep it or shall I erase it? Sir, just 1 second. I just want. One Okay. second, sir.
Done, students? Sir, wait. Okay. जो भी लिखो, जो भी एंटर करो, सही लिखना। कहाँ पे भी तुम्हें कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो री आस्क। आई टेल यू, डोंट जस्ट राइट ऑन ब्लाइंडली, गलत मत लिखना। Written is remembered. If you write wrong, you'll remember wrong then. So, Done, sir. Okay. अभी तुम्हें पता है स्टूडेंट्स, जब भी मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताया था तो ऑलरेडी ये पोर्शन मैंने बता दिया। क्या बताया था? जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा। Because I made it very clear, when you plot graph, does stress depends on to strain or strain depends on to stress? Due to stress, we get strain. That's what I made it very clear to you. To all in the books, it's given stress on y-axis, strain on x-axis. But actually, जब ये सुनने में आता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, तो बोलेगे सर वायर इज अंडरगोइंग अ डिफॉर्मेशन, चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहा है वायर में, यानी वायर के अंदर चेंजेस हो रहा है, यानी स्ट्रेन हो रहा है। किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेन वाई एक्सिस में होना चाहिए था, स्ट्रेस एक्स एक्सिस में होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने ये बताया तो उस टाइम पे तुम्हें क्लियर हुआ कि हाँ सर, ये अगर मैं ओरिजिनल एरिया के ऊपर चला जाता हूँ, इसको भी विद रिस्पेक्ट ओरिजिनल एरिया पे ऊपर चलाता हूँ, और यहाँ पे मैं ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से चला जाता हूँ, तो ये बन गया मेरा स्ट्रेस का डेफिनेशन। क्योंकि स्ट्रेस इज नॉट अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, and this is called stress. This is change in length upon original length, so that becomes strain. Therefore we say stress proportional to strain and not strain proportional to stress. That's why the graph we call as a straight line graph. This graph goes to a particular limit called as elastic limit. Hooke's laws are with. लेकिन तुम्हारे जो भी कांस्टेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो सारे 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 प्रोपोर्शनली लिमिट तक होता है। यानी ग्राफ के अंदर एक पॉइंट होगा जो स्ट्रेट पार्ट दिखाएगा, वो वहां तक ये अप्लाई होंगे। अगर थोड़ा सा ग्राफ आगे बेंड होगा, बेंड हो जाता है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बियॉन्ड चला गया है, तो वी विल नॉट कंसिडर देम टू बी एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट, but still the wire can have, or the material can have, some elasticity. So we learned about stress strain part of it from here, and this I picked up long before, not today. This is what you should recollect, what exactly was done earlier, what exactly I'm trying to do right now. And why didn't I touch this? The reason is because it's going from some other chapter. This is our topic. This is from simple harmonic motion, from oscillations. Now, if any MCQ comes onto spring constant, you can consider springs और इसके साथ में, तो तुम कर सकते हो। अगर सपोज मैंने एक कॉम्बिनेशन दे दिया, एक तरफ मैंने वायर दिया और दूसरे में मैंने स्प्रिंग डाल दिया, चलो एक ऐसा सेटअप दे दिया जहाँ पे एक वायर दे दिया और स्प्रिंग दे दिया, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा? स्टिफनेस स्प्रिंग कांस्टेंट दिखाता है,
वायर के अंदर स्टिफनेस YAL दिखाएगा, समझ में आ रहा है? और दोनों कैसे है, सीरीज में है, तो उनका K इफेक्टिव क्या होगा, 1/K1 + 1/K2. Are you getting it, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, students, so please pay attention. Now we are speaking about behavior of a wire under constant force. My dear Ruksar, recording हो रहा है ना रुखसार? Recording Yes, is sir. happening. तो तुम लोग को recording मिल रहा है कि नहीं मिलता है? तुम्हारे सारे lectures में record करके भेज देता हूँ मैं, already I give it to the institute और फिर वो dispatch करता है, तो तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है? रुखसार, I'm asking you, Yes, sir. मिलता है कि नहीं मिलता है? सर ग्रुप पे तो नहीं आता. नहीं, लेकिन तो फिर कहाँ पे भी तो मिलता होगा ना तुम लोगों को? Yes, Sir, maybe sir. I attend sub channel. Very good. Okay, fine. Now please pay attention. The next part we consider. Now you have a latter part, thoda sa theoretical, like short derivation, students. That will be the end of the wires part of it. Then we'll go for liquids. अभी ये जो part है students, ये हम बताने वाला, I'm trying to put forward the concept of stress, strain curve. उसका मतलब this is behavior of a wire under constant tension, यानी load. यानी वायर कैसे बिहेव करता है अगर उसके ऊपर लोड एक्ट हो रहा है, तब तक कैसे बिहेव कर रहा है हम वो जान रहे हैं. आई टोल्ड यू वायर अंडरगोस अ सर्टेन चेंजेस ड्यू टू लोड. अभी लोड का मतलब ये जरूरी नहीं है कि लोड बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ने के बाद में भी अगर तुम कम करते हो, ध्यान से सुनना, ये वायर दिया है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग बिफोर गोइंग फॉर द कंसेप्ट. ये ध्यान में रखना, अगर मैंने वायर दिया है उसको मैंने लोड करके गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि सर अभी हम ये बताने वाले हैं कि यू गो ऑन लोडिंग द वायर and we need to understand what is going to happen in the changes in the wire, of course. But at the same time suppose अगर मैंने अनलोड करना शुरू कर दिया तो भी तो कुछ लोड है. अगर सपोज मैंने किया 10 किलोग्राम में से मैंने आधा किलोग्राम निकाल दिया, फिर भी तो वायर इज हैविंग 9.5 kg, तभी भी तो लोड है, तो उस टाइम पे भी कैसे बिहेवियर है, that is also you are going to understand simultaneously. That's why students look at the heading. I didn't say behavior of a wire under applied tension. I didn't say that. Behavior of a wire under withdrawal of tension. I didn't say that. I simply said under constant tension. यानी कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ लोड है. क्या ये समझ में आया? सबसे पहले हेडिंग समझ में आया? नहीं तो तुम तो मेरे साथ में वो यश बोलेगा कि सर लोड तो हो रहा, अभी आप कम कर रहे हो. Are you getting it? Josh, did you get this? Yes, sir. Yes, this is so. Whenever you need to, whenever somebody is trying to put forward, just read the lines very. And if you're not getting instantly, you should stop over there itself. Sir, what exactly the heading speaks about. Now, once when you understand this, अभी देखो तुम्हारा concept easy हो जाएगा. तो हम समझने वाले हैं कि वायर कैसे बिहेव करेगा जब भी तुम उसको लोड दोगे
या लोड निकालोगे या लोड को कांस्टेंट रखोगे, वैसे का वैसे ही लोड रखोगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक वायर लेके रखा हुआ है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, I've taken a wire and I have connected that wire to 10 kilogram force, और वो and that 10 kilogram force I've suspended for 3 days. There are two students who are performing it. एक ने 10 kilogram force suspend करके रखा है for 2 days and the next person is suspended for 3 days. So can I say the time for which the load is acting on that particular wire was longer for 3 days and shorter for this? तो effectiveness तुम्हारा जो changes होगा वो ज़्यादा उसमें होगा, कम इसमें होगा, लेकिन होगा तो जरूर। Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay. Now let us understand stress scale curve. Before going for the curve, very important is वापस graphical representation. Stress कहाँ पे होता है, strain कहाँ पे होगा, तो तुरंत तुम्हें बोलना चाहिए stress हमेशा students y axis पे होगा, strain कहाँ पे होगा sir x axis पे। क्यों stress y axis पे? If such stress is restoring force per unit area, strain is change in dimension upon original dimension। और अभी आपने बताया था applied force, displacement, restoring force, तो ये symbol ज़्यादा सही है, stress into strain we consider। Now the answer सुनना students। To understand this, let us understand कि एक मैंने wire दिया है students। Everything in this wire, I've taken a wire, okay, and this wire is of length L. Area of cross section is A. Material of the wire is Y. And what am I trying to do is I'm trying to subject this particular wire. मैंने नीचे load लगाना शुरू कर दिया। I'm not showing it over here, but I'm trying to compare as if I'm showing it over here. लेकिन load यहाँ पे ही है। A dotted B. I have to extend the wire also. So think as if I'm loading the wire. And how much is the load I'm putting it? You know, it's not 10 grams, 20 grams. It's half a kg. आधा किलो। आधा किलो मालूम है? आधा किलो आलू अगर तुम्हें किसी थैली में बांध के दे दिया और तुम्हें पूछा, तुम किसी ने पूछा करके होल्ड इट इन योर हैंड लाइक दिस फॉर सर्टेन लॉन्गर टाइम, यू विल नॉट बी। उसका और आधा किलो इंक्रीज करो, 1 किलो आलू को एक थैली में डालो और फिर उसको होल्ड करके रखो विथ योर हैंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू, योर हैंड विल स्टार्ट पेनिंग। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लोडिंग होगा ना, इट इज नॉट इन मिलीग्राम्स और ग्राम्स, इट्स इनटू किलोग्राम्स, बिकॉज दिस इज मेटालिक वायर। It's metallic wire, made up of steel, brass we consider, aluminum we consider. These are metallic wires. Thickness very small. अगर तुम इसका radius, अगर तुम्हें area of cross section चाहिए तो इसका radius कैसे measure करोगे? Of course, I'll be using a screw gauge for it. A screw gauge is a device which is used to find out area of cross section by the formula pi r square. So to understand this, I've taken a wire of length L, area of cross section is A, Young's modulus is Y. I'm going on loading it. जैसे मैंने load करना शुरू कर दिया क्या होगा? Wire can undergo an extension. यानी स्टूडेंट्स जैसे जैसे वायर के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, वायर will undergo change in dimension also. Am I getting it? That means there will be change in length. There will be change in length. But over here, students, do you see? Do you have any change in area of cross section happening over here? देखो, ये लेंथ L है, ये अभी मुझे नया लेंथ मिल गया, तो ये हुआ मेरा change in length. But did the area of cross section changed? No, sir. That means my graph is certainly a straight line and this graph moves to a point called P. And this point P I'll call as proportionality limit. जहां पे मैं बोल सकता हूँ stress and strain, the ratio all the time remains constant, and this will give me 3 kinds of elastic constants. It can be Young's modulus, it can be bulk modulus, it can be modulus of rigidity. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. यानी तुम्हारे एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, रिसोर्स यानी हो क्या रहा है सर? आप कैसे बोल सकते हो कि ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा? स्टूडेंट्स अनलोड करो ना। हेलो, ये देखो आधा किलो किया तो शायद वायर मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन मिला, और आधा किलो किया मैंने वायर एक्सटेंशन मिला, और आधा किलो किया। Suppose if I go for certain weights, I got this much as the extension. Now suppose if I unload, if I remove the load, what happens? जैसे जैसे ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं लोड को कम कर रहा हूँ, जैसे जैसे look at it, I'm going down the y-axis. If I'm reducing the load, if I reduce the load, simultaneously, what happens? The wire is retain its original position, and the graph will come back to origin. I can say that the graph. That means when you're plotting points, y coordinates corresponding to x coordinate, the graph will be a straight line.
जैसे जैसे तुम y coordinates को डिक्रीज करते जाओगे by the same amount, x coordinate also will decrease by the same amount in that case. So what happens, my graph will come back to origin. That shows that the wire is certainly in the proportionality limit and it's obeying Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity concept. Yani Hooke's laws are more effectively obeyed till proportionality limit. अगर इसके बियॉन्ड तुम थोड़ा सा चले गए, अगर सपोज मैंने थोड़ा सा और लोड कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ा सा वायर के अंदर एक बेंड नेचर आने लगेगा, यानी ग्राफ तुम्हारा थोड़ा सा बेंड होगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो ये जो पॉइंट ई आता है, पॉइंट ई इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। योर हुक्स लॉ, स्टूडेंट्स, योर हुक्स लॉ is obeyed within elastic limit. Within elastic limit we consider. तो ग्राफ के ऊपर अगर तुम देखोगे पॉइंट पी क्या है, तो बोलोगे सर पॉइंट पी इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। तुम्हारा पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ई आई कंसीडर टू बी द इलास्टिक लिमिट वी कंसीडर। इज दैट क्लियर? तो अगर तुम देखोगे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ग्राफ अगर मैं इस पार्ट पे देखूं, I getting it, इस पार्ट के अंदर मैं ग्राफ if I happen to consider in this case, is that clear? तो तुम्हारा ग्राफ लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर ग्राफ है। तो तुम्हारा जो हुक्स लॉ है वो इस पार्ट के ऊपर नहीं कंसिडर होगा, कर्व पार्ट पे कंसिडर नहीं होगा, इट विल बी अलोंग द स्ट्रेट पार्ट वी कंसिडर। तो पॉइंट ई अगर किसी ने पूछा तो दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। वेर एक्जैक्टली हुक्स लॉ इज ओबेड विदिन इलास्टिक लिमिट्स, below elastic limit, that means more precisely we consider till the proportionality limit we consider. यानी अभी हो क्या रहा है, उसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर सपोज मैंने लोड और बढ़ाया, ध्यान से देखना, लोड और बढ़ाया तो होगा क्या सर, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब अभी सेम था, शायद वायर का एरिया थोड़ा सा चेंज होगा, ऑफ कोर्स, तभी जाके तुम्हारा ग्राफ कर्व आ रहा है। ये कर्व नेचर और बढ़ेगा, ये कर्व नेचर और बढ़ता है जैसे जैसे तुम लोड करते जाओगे। व्हाट्स गोना हैपन, द वायर विल अंडरगो एलोंगेशन। देखो स्ट्रेन हो रहा है, सी द वायर इज अंडरगोइंग अ स्ट्रेन, बट एट द सेम टाइम द वायर इज व्हाट हैपनिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूसिंग। So what is the graph I'll consider? The graph will be a curve and will go almost parallel. Look at this graph. Is this graph going parallel to the strain axis? Yes. What does this mean? What does this mean? This means that if I go on loading the wire, देखो भैया, देखो मैं कर्व बनाता हूँ, प्लीज कर्व के ऊपर तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर दिया मैंने, ये तुम्हारा पॉइंट ई था, थोड़ा सा कर्व है यहाँ पे, ये तुम्हारा स्ट्रेस है और ये तुम्हारा स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। अब ध्यान से लिखना, अगर मैं स्ट्रेस इक्वली बढ़ाता हूँ, लुक एट इट, ये जो गैप है इक्वल रखूंगा मैं, अगर मैं स्ट्रेस इक्वली बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस इक्वली बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस इक्वली बढ़ा रहा हूँ, लुक एट द स्ट्रेन, देखो सीधा गैप। तुम बोलोगे हाँ सर स्ट्रेस सेम है, कांस्टेंट है, आधा किलो आधा किलो आधा किलो आधा किलो, लेकिन स्ट्रेन देखो, पहले स्ट्रेन कम था, लेकिन जैसे आपका ग्राफ कर्व के ऊपर और जाना शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि सर स्ट्रेन अभी बढ़ रहा है, स्ट्रेन अभी बढ़ रहा है, यानी अभी हो क्या रहा है सर, वायर अपना नेचर चेंज कर रहा है। अरे हाँ सर, वायर का डायमीटर और कम हो रहा है, लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन रेडियस भी कम हो रहा है, यानी सर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो वायर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, कौन से पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे। क्यों क्योंकि अभी देखो अगर सपोज मैंने स्ट्रेस थोड़ा और बढ़ा दिया इसके बियॉन्ड, अभी क्या हो रहा है, इज द स्ट्रेन इंक्रीजिंग, सी द वायर इज गोइंग पैरेलल, सी द ग्राफ, इज द ग्राफ गोइंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यस। Look over here, I'm not increasing any stress, I'm keeping the stress constant, it is under load only, but see the strain, is the strain increasing, is the strain increasing, is the strain increasing, उसका मतलब क्या है, वायर अभी भी पतला होते जा रहा है, तुम लोड नहीं बढ़ा रहे हो, लोड उतना ही रख रहे हो, लेकिन अभी भी वायर पतला हो रहा है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट y तुम्हें दिखाई दे रहा है,
what is this point y I can call? This is called as my yield point. That means the wire has yielded a new characteristics. जब तक मैं पॉइंट P तक लेता था या पॉइंट E तक लेता था वो इलास्टिसिटी था. जब भी मैं Y पे चला गया, कर्व नीचे पे चला गया, तो अभी कौन सा है? It yields a new characteristic and that is plasticity. क्या इतना समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट P, पॉइंट E, पॉइंट Y. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. All of Sir, your. Sir, हाँ बोलो. I am not understanding elastic limit. Elastic, देखो, elastic limit is actually what, you know, a limit to which you can take a wire undergoing an extension, but that part which you see it on the graph, it's very small. ये जो proportional limit है, ये mathematical relation है. ये जो हम ये जो ratio लेते हैं ना, ये जो ratio लेते हैं ना, stress और strain, ये जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट एक, क्योंकि जब भी तुम ग्राफ लेते हो, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कांस्टेंट आना चाहिए, y2 minus y1 upon x2 minus, तो वो यहाँ तक फुलफिल करता है. अगर तुम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हो तो वायर इलास्टिक नेचर दिखाता है. इलास्टिसिटी का मतलब क्या? वो रेजिस्ट करना चाहता है चेंज इन डायमेंशन. तभी जाके तुम्हारा कर्व नेचर ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है. लेकिन जब भी तुमने स्ट्रेस और बढ़ा दिया तो उसके बियॉन्ड, अभी उसका अभी वो छूट गया, अभी वो नहीं कर सकता है. दैट इज व्हाट आई कंसीडर. यानी अगर मैं एक पॉइंट m यहाँ पे ले लेता हूँ, E के बाद में, ध्यान से देखना, अगर E के बाद में मैंने एक पॉइंट m ले लिया, तो ये जो मेरा पॉइंट m हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? परमानेंट सेट. क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैंने यहां से वायर को अनलोड करना शुरू किया ना, सपोज अगर मैं पॉइंट m तक हमारा वायर क्या कुछ लोड किया है, अभी मैं अनलोड कर रहा हूँ, तो अनलोड करूंगा तो तुम क्या बोलोगे? सर स्ट्रेस कम हो रहा है, स्ट्रेन भी कम हो रहा है. लेकिन मेरा ग्राफ क्या होगा? देखो ग्राफ क्या होगा. ये देखो, ये डॉटेड लाइन जब भी मैं m से शुरू करता हूं और x एक्सिस मीट कर रहा हूं, तो मेरा ये जो ग्राफ है वो o पे नहीं जाएगा, o डैश पे जाएगा. यानी मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया. उसका मतलब तुमने E के बियॉन्ड चले गए, तो उसका मतलब एक परमानेंट सेट हो गया, यानी वायर भी डिफॉर्म हो जाना शुरू हो गया. तो यहाँ पे तो तुम्हारे इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आता ही नहीं है. इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी टिल E है. परफेक्ट रेशियो कांस्टेंट होगा P और E के बीच में जो गैप है स्टूडेंट्स, वो बहुत छोटा गैप है. तभी जाके जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो, whenever I explain you यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन, बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मैंने क्या बताया था? विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी आई एम इनसाइड दैट, I'm not at that point. If I'm trying to go inside that means I'm trying to go till P. I'm not speaking about any curve part between P and E. इसलिए हम बोलते हैं E stands for, अगर किसी ने पूछा, चलो अगर किसी ने पूछा at E, प्लीज अगर तुम्हें किसी ने पूछा स्टूडेंट्स at E are Hooke's law obeyed? No. At E are Hooke's law obeyed? No. Hooke's laws are obeyed within E. Hooke's laws are obeyed within E. यानी where? At point P. What does this P stands for? Proportionality limit. And now if you look at the points, P stands for proportionality limit. E stands for elastic limit. Hooke's law is obeyed within elastic limit. इसलिए मैंने बता दिया. M का मतलब मैंने डाल दिया permanent set. Permanent set का मतलब क्या सर? वायर डिफॉर्म हो रहा है. कैसे पता चला भाई तुम्हें वायर डिफॉर्म हो रहा है? सर जब भी M तक पहुंचा ना वायर, जब भी उसका स्ट्रेस था तो मैंने स्ट्रेस कम करना शुरू कर दिया, और साथ में मैं y की वैल्यूज कम करते गया और x का वैल्यू प्लॉट करते गया. तो y और x का जब भी मैंने प्लॉट किया तो मेरा जो पॉइंट वापस o पे नहीं आ रहा, o डैश, यानी मेरे ओरिजिन शिफ्ट हो गया. तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप. कौन सा? ध्यान से देखना. m e p o डैश, ये है लूप. देखो m e p, ये स्ट्रेट लाइन होगा, o डैश, ये क्या है? हिस्टेरेसिस लूप. यानी द ओरिजिन है शिफ्टेड फ्रॉम o टू डैश. भले वो बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, लेकिन क्या मेरा वायर अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है? नहीं आ रहा है. यानी सर उसने अपना नेचर खो दिया.
Are you getting it? The wire is not retaining its original shape. That is why we call M as a permanent set. अभी wire permanent deformation में चला गया. अभी प्रूफ करो, कैसे चला प्रूव करोगे कि डिफॉर्मेशन में चला गया? और स्ट्रेस बढ़ाओ ना. तो स्ट्रेस जैसे बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, फिर उसने क्या किया? स्ट्रेस को बढ़ाना ही बंद कर दिया. स्ट्रेस को बढ़ाना ही बंद कर दिया. देखो स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देखो वायर वायर देखो ग्राफ पैरेलल जा रहा है. सर आपने लोड करना बंद कर दिया, लेकिन वायर अभी भी स्ट्रेन हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, वायर का लेंथ बढ़ रहा है, वायर का लेंथ बढ़ रहा है. यानी स्टूडेंट्स लेंथ बढ़ रहा है और एरिया कम होते जा रहा है. लेंथ बढ़ रहा है, एरिया कम होते जा रहा है. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? We are not over here to understand what is proportionality limit. No, we are not understanding over here what is elastic limit. We are not understanding over here what is permanent set. We are not over here to understand yield point. We are over here understanding behavior of a wire under constant load. देखो ना यहाँ पे लोड है, ये देखो ना लोड है भाई. कहाँ मैंने निकाला? लोड नहीं निकाला, फिर भी वायर तो बढ़ रहा है ना, लंबा होता जा रहा है, एरिया और कम होती जा रही है. हाँ, लेकिन जब भी तुम समझते हो तो उस टाइम पे अलग अलग पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं. अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया ना, सपोज इफ आई से फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया कि ग्राफ ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ पे ऐसा ग्राफ आके छूट गया, ये यहाँ पे आके छूट गया. अभी इसके बाद ग्राफ ही नहीं है फ्रेंड्स, इसके बाद ग्राफ ही नहीं है. उसका मतलब क्या हुआ? वायर टूट गया सर. इसके बाद में आपने ग्राफ दिखाया ही नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ? ब्रिटल. What is this? The wire is brittle. Best example of brittle क्या होगा? Glass. Have you learned about annealing of glass? है ना? ग्लास को हीट करके लंबा करते हैं. Yes, हाँ, sir. है Yes, ना? sir. तो जैसे जैसे वो लंबा होता जाता है, उसको वापस रिटेन करने की इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट इजीली पॉसिबल टू रिटेन द ग्लास टू इट्स ओरिजिनल शेप. वो अपने डिफॉर्मेशन में आ जाता है. तो जैसे जैसे ग्लास लंबा होता जाएगा, वो पतला होता जाएगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इतना पतला हो जाएगा तुरंत टूट जाएगा. वो ब्रिटल के बारे में हो गया. ये ग्राफ ब्रिटल के बारे में हो गया. अगर मैंने ऐसे ग्राफ बताया और फिर ऐसा जाके छोड़ दिया, उसका मतलब ये स्ट्रेट जा रहा है पैरेलल. उसका मतलब क्या है? ये प्लास्टिसिटी का है. ये देखो ये प्लास्टिसिटी का ग्राफ पैरेलल जा रहा है, ये प्लास्टिसिटी आया. स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, लेकिन वायर लंबा होता जा रहा है. यानी हम पूरा नेचर ही चेंज कर रहे हैं. आई गेटिंग इट? इज दिस मच क्लियर विद एवरीवन? तो मैं आगे बढ़ूं. Yes, sir. All of you, Yes, sir. not 1, 2, and 3, not 1, 2, and 3. Please, Josh, are you clear with it? Josh, Yes, sir. Sir, I just had one small doubt. pardon? Sir, I have a small doubt, sir. What? So, can you hear me? No, I'm not able to. Can you be loud? Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, within P, like between P and E, is Hooke's law obeyed? Your voice is cracking, my dear. Between P and E, Hooke's law is not obeyed. The graph is a curve. That's why Hooke's law is not obeyed. That's why Hooke's law is not obeyed. The graph is curve. It's not a straight line. Okay, it's not obeyed. And अगर किसी ने पूछा what is the gap between P and E? Is it too large? No, it's very small. That is why while defining Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, we always say within elastic limit. That means when I use the word within elastic limit, that means I'm speaking about proportionality limit. तो जब भी ग्राफ के अंदर होगा तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है? P आता है, बाद में E आता है. Yes, उसके sir. बाद में M आता है. M पे अगर मैंने अनलोड किया तो O डैश आ गया, परमानेंट सेट हो गया, वायर परमानेंट डिफॉर्म हो गया. वायर आ गया तो यील्ड पॉइंट हुआ. यील्ड का मतलब क्या? वायर ने अपना एक नया कैरेक्टरिस्टिक से यील्ड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. फॉर एग्जांपल कोई बॉडी, सिंपल एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है जो एकदम सीधा साधा है पढ़ाई के मामले में, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसने एक टोटली न्यू कैरेक्टरिस्टिक यील्ड कर दिया, नॉटीनेस का. तो दैट इज changing the characteristics of the entire. The same thing अगर मैं पैरेलल कर दिया तो वायर has changed its characteristics. Now can I move further ahead, students? Yes, sir. अभी हम क्या कर रहे हैं सर? हमें समझना है बिहेवियर ऑफ वायर अंडर. सर अभी यहाँ पे तो आपने स्ट्रेस को कांस्टेंट रखा, अभी स्ट्रेस को सर अभी लोड करो ना. चलो ना और समझो ना कि हमें और समझना है कि अगर हमने यहाँ से लोड करना शुरू किया तो क्या होगा. तो देखो लोड करो,
जैसे तुमने वार को यहां से लोड करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या, वापस वार का कर्व नेचर बढ़ेगा। देखो कर्व नेचर बढ़ रहा है, यानी जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्टूडेंट, देखो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अगर देखो स्ट्रेस, सपोज अगर मैंने स्ट्रेस इक्वली बढ़ा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो वार इज अंडरगोइंग स्ट्रेन, स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन तुमने वार का लोड इतना बढ़ा दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम आ गए। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट, एवरीबडी लिसन केयरफुली नाउ, केयरफुली, दिस पॉइंट, and this is called UTL. What does UTL stands for? Ultimate Tensile Strength. स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। अगर तुम्हें मालूम होगा स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्रेकिंग स्ट्रेस? एनीबॉडी? वीरो जी। हाँ वीरो जी, एक पंच देना चाहिए। सर डीएलजी, वीरो जी ऑफ थ्रस्ट। टीएल। यस, यानी ये तुम्हारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है स्टूडेंट्स। ये होगा डीएलजी, डेंसिटी ऑफ द वार, लेंथ ऑफ द वार, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये मैंने डिराइव किया था। तो तुम बोले सर इसका मतलब ये क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अगर तुमने वार को ये प्लास्टिसिटी रीजन के बियॉन्ड अगर वापस तुमने लोड करना शुरू कर दिया, तो वार और पतला हो रहा है, और पतला हो गया, और पतला हो रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 किलोग्राम यहाँ तक दे दिया है, वो इतना, अगर 15 के बाद में 15 किलोग्राम के बाद में अगर मैंने 1 मिलीग्राम भी इंक्रीज किया, स्टूडेंट्स 15 kilogram के बाद में 15.1 also if I consider, 15.01 also if I consider, then the wire will break at that point. That's why it is called as a breaking stress. It is holding still that. What am I trying to understand? I don't want to understand when does the wire break. Hello, I'm not over here to make you. I want to understand behavior of wire. तो हम क्या करते हैं, एक ब्रेकिंग स्ट्रेस तक जाते हैं, हम 15 किलोग्राम तक जाते हैं, लेकिन 15.1 तक नहीं पहुंचते सर, 15 तक जाते हैं, 15 तक जाते हैं। तो देखते वहां पे क्या होगा, तो एक पॉइंट आता है जिसको मैं बोलूंगा बी। इसको हम बी को क्या बोलेंगे? so this is called as B stands for breaking stress. So what exactly ultimate tensile stress, or we consider breaking stress, UTL और B। तुम्हारे बुक्स के अंदर UTL दिया होगा, मैंने B ले दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अभी हम क्या करेंगे सर, इसके बियॉन्ड तो मैं जा नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी लोड बढ़ा दिया तो सर वायर तो टूट जाएगा, क्योंकि इतना पतला हो गया वायर। तो करे क्या सर, हमें तो समझना है अंडर कांस्टेंट लोड। तो करे क्या सर, ऐसा करता ना, अभी अनलोड करना शुरू कर देते, फिर भी लोड है कि नहीं। अगर ये 15 किलोग्राम है, उसमें से मैंने आधा किलोग्राम निकल गया, तो 14.5 तो है कि नहीं, 14.5। दैट 14.5 मींस नाउ यू स्टार्ट अनलोडिंग। धीरे धीरे अनलोड करना शुरू करो। जैसे तुम अनलोड करना शुरू करोगे, क्या होगा, तुम्हारा वायर वापस नीचे की तरफ आएगा, यानी स्ट्रेस कम हो रहा है, स्ट्रेस कम। लेकिन देखो वायर का स्ट्रेन देखो, वायर स्टिल अंडरगोइंग अ स्ट्रेन, यानी सी हो गई हो। जैसे जैसे तुमने अनलोड किया, कहां से ना स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन द वायर इज अंडरगोइंग द स्ट्रेन, सी हो गई हो। द वायर, देयर इज अ स्ट्रेन, देयर इज अ स्ट्रेन, देयर इज अ स्ट्रेन, द वायर इज इंक्रीजिंग इट्स लेंथ at a particular load. Students, at a particular load, what's going to happen now? At a particular load, if you consider, at a particular load, you'll consider the wire becomes so thin. The wire becomes so thin that a weakest neck or a weakest constriction is formed, and the wire breaks at that point. The wire breaks at that point, and this is called as fracture point. So, what does point F stands for? Fracture point, or the breaking point. The point at which the wire breaks. So now if you carefully look into it, what are all the points speaking about? तो सबसे पहले तुम्हारा पॉइंट आता है P, stands for proportionality limit. Second, elastic limit. Third, capital M, permanent set. Fourth, yield point. वहां is yielded new characteristics. B is breaking stress, DLG. लेकिन वहां पे वायर को हमें तोड़ना नहीं है, इसके ऊपर गया तो वो टूट जाएगा। यहाँ से मैंने अनलोड करना शुरू कर दिया, फिर भी वायर खींचा चला जा रहा है, पतला होता गया, थिकनेस ऑफ अ हेयर, उससे भी कम थिकनेस, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टूट जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट।
What is F? Is this clear? A concept of stress strain curve, behavior of a wire at a constant tension or load. क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. All of you all, not to Ruksar only, all of you all the students. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, fine. Shall I erase this or you're copying it down? 1 second, sir. Okay. Let me know when you finish, huh? Why is a graph parallel after yield point? Hello, Kunj. Yield का मतलब क्या? Yielding का मतलब क्या? Trying to have a new format. कुछ तुम yield कर रहे हो, तुम changes ला चुके हो, और parallel इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं load ही नहीं कर रहा हूँ. देखना ग्राफ पैरेलल क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने स्ट्रेस को कौन सा मैंने एक लोड रख दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वायर अपने आप स्ट्रेन हो रहा है, वायर अपने आप लेंथ बढ़ रहा है. यानी ये लेंथ बढ़ना का मतलब क्या है? इज इट मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी? बता. वायर का लेंथ बढ़ना है तो उसका मतलब क्या? इज इट मेलिएबल और डक्टाइल? कुंज, कुंज आर यू देयर? अरे कहाँ यार कुंज? नॉटी बॉय, वेयर आर यू कुंज? Sir, please explain again. I got Right. disconnected. अरे यार तू ऐसा क्या कर रहा है? मुझे इतना दुख दे रहा है तू. मुझे ये बता, अगर ये वायर पैरेलल है तो मुझे बता स्ट्रेस बढ़ रहा है या स्ट्रेन बढ़ रहा है? वायर अगर पैरेलल जा रहा है तो Strain पैरेलल button. स्ट्रेन Strain बढ़ रहा है, button. स्ट्रेस बढ़ रहा है. No, sir. दैट मीन्स आर यू लोडिंग द वायर? No, sir. आर यू अनलोडिंग द वायर? No, sir. बट इज द लोड कांस्टेंट? Yes. बट देन टू आल्सो ड्यू टू दैट लोड द वायर इज अंडरगोइंग एन एक्सटेंशन. हाँ, sir. That means it is trying to go for a different behavior. And what is it that different behavior is? Yielding a new behavior. What is that new behavior the wire is undergoing? That is plasticity. हाँ. Formation into thin wires. इसको हम क्या बोलेंगे? Malleability or ductility? Malleability. Hey, naughty boy, malleability is forming into thin sheets. Oh, sorry, ductility. Yes, sir. Ductility is into thin wires. Naughty boy. समझ में आ रहा है? तो Yes, वायर sir. अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहा है, डक्टाइल बन रहा है, बहुत ही पतला वायर बन गया. लेकिन हमें 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 पढ़ना है ड्यू टू लोड. लोड और बढ़ाना है, लोड को कांस्टेंट रखना. अगर इसका में और लोड बढ़ा हुआ तो ग्राफ वापस ऊपर जा रहा है. देखो ना, लोड बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक हद तक चला गया जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डीएलजी.
उसके बियॉन्ड तुम जाओगे तो वायर टूट जाएगा। तो मैंने क्या किया, वहां से अनलोड करना शुरू कर दिया डायरेक्टली। मैं एक फ्रैक्चर पॉइंट पे आ गया जहाँ पे वायर इतना पतला हो गया और वो टूट गया। Okay. तो सर अगर we are not increasing stress, then too that strain will keep on increasing. Yes, yes, we are not, but there is load. There is still load. Look at the heading. Behavior of a wire under load. Agreed? Yes, sir. Not necessarily. मैंने इसलिए पहले बोला था, जरूरी नहीं कि लोड बढ़ना चाहिए या लोड कम होना चाहिए। बढ़ेगा तो भी हमें समझना है, कम होगा तभी भी हमें समझना है, अगर कांस्टेंट रहा तो भी क्या होगा। That is what we have. We are understanding the graph. Okay, my dear. Yes, sir. So सर अगर मैं y के बाद अगर मैं स्ट्रेस कम कर रहा हूँ तो भी वो बढ़ेगा स्ट्रेन। हाँ, तो यह है ना। Okay, इसके got बाद it. तो तू और ऊपर चला जाएगा करके, है ना। Yes, sir. लेकिन वो भी तेरे को वहां पे यू विल गेट अ ब्रेकिंग स्ट्रेस में मिलेगा। लेकिन वो पॉइंट थोड़ा सा इससे और बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर लंबा हुआ है, फिर यहाँ पे गया, वो थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा और फिर नीचे आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Done. Okay, can I read the students? Yes, sir. Okay. Excellent. If in case one asks you, is the force is the force uh, is the force within the proportionality limit? That means जब भी मैं बाहर को अनलोड करता हूँ, वापस मैं ओरिजिन पे आता हूँ, तो जो फोर्स है, यानी कौन सा फोर्स है, स्टोरिंग फोर्स हम पकड़ते हैं वहां पे, तो क्या ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव फोर्स है? For the straight line part of the graph, students. So when I go for a stress and strain part of the graph and considering the straight line passing through the origin, students, then what about the force which you consider within the proportionality limit?
Is it a conservative force or it's a non-conservative force? Conservative. उसका मतलब? उसका मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी जब भी वायर एक्सटेंड होता है तो देयर इज सम वर्क डन by the atoms and molecules in extension of the wire against the restoring force. तो ये एनर्जी कहाँ पे चली गई है? स्टोर हो गई है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब भी वो वायर अपने शेप में वापस आता है तो वो एनर्जी कहाँ पे चली गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी जब भी वायर अनलोड होके अपने जगह पे वापस आता है ना स्टूडेंट्स, ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ये मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए ही, पी तक। जब भी मैंने बोला मैं वायर को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वायर का लेंथ एल है। इफ आई एम एक्सटेंडिंग द वायर टू एल डैश, is there any work done in this extension? Yes. The work done in this extension gets stored in the elongated wire. The work done in extension gets stored in the elongated wire in the form of elastic potential energy. Absolutely correct. That is also called a strain energy. Now suppose अगर मैंने अनलोड करना शुरू किया, अनलोड करना शुरू किया, अनलोड करना शुरू किया, अनलोड करना शुरू किया, तो वायर अपने जगह पे ओरिजिन पे आ गया है, तो तुरंत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा, सर आपने बोला था एनर्जी तो शो, अभी एनर्जी कहाँ पे चली गई? जब अनलोड होगा और वायर अपने जगह पे वापस आया तो जो एनर्जी स्टोरेज था, इट गेट्स इनटू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट। यानी तभी जब भी दैट्स व्हाट वी कंसीडर कि जब भी वायर रिटर्न करता है अपना पोजीशन बैक, तो वायर थोड़ा सा थर्मली गेट्स हीटेड। Yes, sir. It's called as conservative forces. That means energy is also conserved. Are you getting it? It converts sir. one form of energy into another form. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अभी हम डेरिवेशन करेंगे इसका डेरिवेशन। It seems that only Ruksar is understand. What about the rest of the students? What about the rest of the students? Daksha Solanki, what about you, Daksha Solanki? Yes, sir. Are you understanding, Daksha? Yes, sir. Very good. You're a smart one. What about others? What about others? हितांशु समझ में आ रहा है? Josh समझ में आ रहा है? Yes, sir. हितांशु, Yes, Josh, sir. Jill, Yes, sir, Jill, sir. what about you? Jill, are you able to understand? अरे हाँ या ना तो बोलो। कृष्ण त्रिवेदी, Om Shinde, what about you? Om Shinde, are you there? Knock knock. Kunj, what about you? Are you getting it, Kunj? Yes, sir. Rishi, what about you? Rishi? ऋषि क्या हो गया? ऋषि बंद हो गया, म्यूट हो गया पूरा। Okay, friends, let's move further. Now we're trying to go for the formula for work done energy stored. उसके पहले एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। Let's see how many of you all can get it. Students, अगर मैंने तुम्हें पूछा, can you plot a graph of stress versus strain for the biggest artery, the aorta? हार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? लब्ड अप, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, है ना? हार्ट के बारे में। Can you plot a graph of stress versus strain? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए प्लीज एवरीवन मुझे बताओ, what about arteries which are considered to be for functioning of heart?
क्योंकि अगर मैं ये हार्ट लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ये हार्ट अगर मैं लेता हूँ, ये ऑरिकल्स, ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है, मेरा हार्ट ऐसा है स्क्वायर शेप, ठीक है, ये हार्ट है, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स, ओके। हार्ट भी एक ऑर्गन है। सी आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू विच स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसको बायो का थोड़ा बहुत नहीं है, लेकिन ये समझाने का मतलब क्या मालूम है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेचर। यस, देयर विल बी अ कर्व ग्राफ, लेकिन कैसा कर्व ग्राफ? तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गन है, ये जो हार्ट है, हार्ट इज ऑल्सो एन ऑर्गन। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, उसको भी तो ब्लड चाहिए, उसको भी तो ब्लड चाहिए ना उसको फंक्शन करने के लिए। सो द आर्टरीज विच सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरीज, जो हम बोलते हैं ना कोरोनरी, यानी aorta or its corresponding arteries which are associated with the heart are called as coronary arteries. Aorta is the biggest artery we consider, और ये पूरे हार्ट को फंक्शनिंग कराते हैं। अभी हम ये बात करते हैं आर्टरीज वेन्स, मुझे बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? आर्टरीज और वेन्स में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? अभी इलास्टिसिटी का मतलब तुम्हें पता चला ना, इलास्टिसिटी फिजिक्स में क्या है, सेम यहाँ पे ये इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायमेंशन, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायमेंशन। तो आर्टरीज हैज हाई इलास्टिसिटी और वेन्स हैव हाई इलास्टिसिटी। चलो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बोलो Arteries. आर्टरीज। स्टूडेंट्स आर्टरीज, तुरंत तुम्हारा दिमाग में एक कंसेप्ट आना चाहिए, विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑफ बायो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता हो जाएगा कि सर आर्टरीज विल बी हाईली इलास्टिक। क्यों? क्यों? अभी सीधा कंसेप्ट चला जाओ हार्ट अटैक पे, सीधा हार्ट अटैक पे चला जाओ। अगर मैंने बोला हाई इलास्टिसिटी का मतलब क्या, ध्यान से देखना, ये आर्टरी है, ओके, ये आर्टरी है। आर्टरी के अंदर ब्लड एक कांस्टेंट प्रेशर से जाता है, एक ग्रेडियंट मेंटेन होता है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है आर्टरीज के अंदर, बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्ट होता है वहां पे भी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन एंड आउट थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट भी कंसिडर, और वो कौन फ्लो कर रहा था? आर्टरी कर रहा था, और वो हाईली इलास्टिक है। अगर सपोज ब्लड ज्यादा ज्यादा फोर्स से जाना शुरू करेगा, ओके, अगर वो ज्यादा प्रेशर डेवलप करना चाहता है तो आर्टरीज क्या करेगा? विल नॉट अंडरगो एन एक्सटेंशन। स्टूडेंट्स, आर्टरीज फूलेगा नहीं, आर्टरी अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायमेंशन, तो रेजिस्ट कर रहा है। अगर अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा ब्लड जाना चाहेगा वहां पे, तो वो आर्टरी जाने नहीं देता है, तो होगा क्या? अगर अगर ज्यादा ब्लड जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर ज्यादा ब्लड जा रहा है उसका मतलब इसके पीछे जो ऑर्गन बिठाया है, उस ऑर्गन को ज्यादा ब्लड चाहिए भाई, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ब्लड ही देता है। ये ज्यादा जाना चाहता है, आर्टरी उसको जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि हाई इलास्टिक है। तो ऑर्गन को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, इंसोम्निया, फटीगनेस, वो शुरू हो जाता है। ऊपर से अगर सपोज तुम घी ज्यादा खाते हो, सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, मलाई वाली चीजें ज्यादा खाते हो, तो होगा क्या? तुम्हारे आर्टरी के अंदर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो बाउंड्रीज है, ये इसको हम बोलते हैं लूमेन, जो गैप है, डायमीटर है, वो और कम हो गया। पहले डायमीटर अच्छा था, हेल्दी था, कि तुम हेल्दी फूड खाते थे, लेकिन जंक फूड खाना शुरू कर दिए, बर्गर खाना शुरू कर दिए, फिर पिज्जा खाना शुरू कर दिए। 15 दिन में एक पिज्जा तो होता ही है घर के अंदर, लॉकडाउन चल रहा है ना, झगड़ा करके, मामा से झगड़ा करके, है ना, और उसके साथ में फिर वो दूसरी चीजें भी मंगाना, मैकडोनल्ड से वो लेके आना, ये सारी चीजें क्या था, जंक फूड खाने से होगा क्या? तुम्हारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा साइज और कम हुआ। अभी ब्लड ज्यादा जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता, क्योंकि और अपनी साइज कर दिया, तो वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अटैक। और अभी अटैक कैसे सीवियर आ जाता है, सडन कैसे आ जाता है? अगर ऐसे कोई बंदा जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, अगर उस बंदे को तुमने सीढ़ियां चढ़ाना शुरू कर दिया, टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ओन डैड, पापा या मामा को पकड़ लो। अगर सपोज तुमने पापा को बोल दिया, पापा 15 माला है, 15 फ्लोर जाना है, हर एक माले के अंदर आपका 20 स्टेप है, फर्स्ट फ्लोर तक 20 स्टेप है, 15 300 स्टेप्स है, चढ़ना है भी हमें ऊपर। तो जैसे जैसे कोई इंसान ऊपर चढ़ना चाहेगा, उस टाइम पे हो क्या रहा है?
He's performing work against gravity. That means your heart, the heart is also working at that time. And when heart work, it exerts certain pressure, it exerts certain power, it needs certain power, it needs certain energy. What is the power developed by the heart? Work per unit time. How much a healthy heart has? How many beats? 72 beats. That means 72 joules. And one beat we consider is these beats are per second per minute. We consider that is 60 seconds. So what's the power generated? 1.2 watts. That's the power generated by the heart. तो जैसे जैसे तुम चढ़ान ऊपर जाओगे तो क्या होगा? हार्ट डिमांड कर रहा है ज्यादा ब्लड को, क्योंकि वो एक ऑर्गन है, उसको ज्यादा ब्लड चाहिए, वो डिमांड कर रहा है। क्योंकि जैसे तुम ऊपर जाते हो तो तुम्हारे ब्रेन को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट ज्यादा पंप करना चाहता है। लेकिन तुमने कोलेस्ट्रॉल वाला तुम्हारा आर्टरी है, तो होगा क्या? ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं हो रहा है। ब्लड क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे आर्टरीज हाईली इलास्टिक है, वो बढ़ नहीं रही है, तो होगा क्या? कोलैप्स होती है, एंड दैट लीड्स टू एन अटैक। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात के बाद में क्या होगा? देयर इज नो इंक्रीज इन स्ट्रेस, बट द स्ट्रेन वी कंसीडर सो लार्ज इन दैट केस, the strain remains constant, the stress goes on increasing, then finally the artery will break. That means it collapses, the person collapse. These are called as elastomers. The arteries are called as elastomers, we consider. This is how we understand the concept of elasticity in human. So arteries are more elastic as compared to veins. ये ध्यान में रखना चाहिए। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए जंक फूड मत खाना, और जंक फूड खाने के बाद में सॉल्ट इंटेक ज्यादा होने के बाद में कभी भी सीढ़ियां ज्यादा मत चढ़ना हीरोगिरी करने में। मोदी कुंज यस सर। हाँ, हीरोगिरी मत करना। अगर कहाँ पे पिकनिक वगैरह में जाता है और वहां पे किसी ने बोल दिया कम ऑन रन अगेंस्ट ग्रेविटी रन, ओके, तो किसी के शौक में से भागना शुरू मत कर देना। यू नो दैट हाउ इज योर हार्ट, ओके, व्हाट काइंड ऑफ फूड intake is taken. Okay, that's how people collapse. They literally collapse. Okay, now students, we are trying to go for the formula for elastic potential energy. Okay, so called as strain energy. Or work done in stretching a wire. So what am I trying to go for? Elastic potential energy, strain energy, or work done in stretching a wire, students. Let us understand this. This is a simple relation with respect to your integration part of it. Students, try to understand this. Think as if this is a wire, I'm giving it to you. ये wire है, इसका length L है, area of cross section is A, students. Okay. Now I'm trying to load this particular wire. जैसे मैंने लोड बढ़ा दिया तो क्या होगा? Wire undergoes an extension. ना ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये सोचो, प्लीज पे अटेंशन ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे स्मॉल x 0 है। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ये तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ है। When I'm loading the wire, please students listen carefully. When I'm loading the wire, what happens? The wire will undergo an extension. We are within the elastic limit. That means we are within the proportionality limit. तो तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। अगर मैं अनलोड करूंगा तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा elongation भी बढ़ेगा। Let us say that the wire has undergone, ध्यान से सुनना, let us say the wire has undergone maximum elongation. That means from x is equal to 0 to x is equal to e. ये maximum elongation, यानी ये original length L था, अभी मेरा new length क्या हो जाएगा? L dash. So students, what exactly L dash minus L, delta L? What is delta L? E. Can I call E as elongation or extension? Yes, sir. ये जो है किसकी वजह से? सर ये है अप्लाइड फोर्स की वजह से। एग्रीड? यानी ध्यान से सुनना, अगर मुझे मैक्सिमम elongation चाहिए, इफ आई वांट मैक्सिमम
elongation E, corresponding force applied also will be maximum, and that is capital F. Can you give me the formula for capital F using Young's modulus? So you know that since y is equal to F by A into L by E, therefore what exactly F is equal to y A E by L? Is this equation number 1 clear with you? Yes, sir. Yes, sir. ये कभी का एक्सप्रेशन होगा सर जब भी आपने वार को पूरा ई तक लेके आए हो तब तक होगा, इसलिए मैंने एफ कैपिटल डाल दिया, मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स है, इलोंगेशन ई। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। क्या इतना क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना बोलो, ओनली रुखसार Yes, is saying it. sir. What about the rest of them? What about the rest of them? Yes, sir. Okay. Now suppose मैंने वार को मैं extend कर रहा हूँ, but now I'm trying to extend the var, students, only till x, only till x. Is it a maximum elongation or an elongation less than maximum? Less than maximum. Yani if my elongation is x, tell me students, what is the corresponding f? Will it be maximum force or less than f? Less than F. Less than F. Very good. Very good. ये कौन बोल रहा है? Less than f दूसरा, एक दूसरी लड़की का आवाज आ रहा है, हमेशा रुखसार का आवाज सुनता था मैं, x और ये f। तो देखो less than f। तो अभी मुझे बताओ students, what's the formula for small f? आप लोग सर YA. मटेरियल, यस, YAE upon L. एक पंच देना चाहिए। ई कहां से आएगा? एक्स आएगा ना, नॉटिकल। हाँ मैंने Yes, बोला sir. क्या कर रही है तू? ये तो मैंने स्मॉल एफ लिखा है ना, स्मॉल एफ के लिए सब मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो आप, तो वाई वैसे ही होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Sir, Area but of there cross-section will be extension. अब तो एक्सटेंशन एक्स है ना, यहाँ तक आया ना। Okay, क्या? sir. ओके सर नहीं, ये इसलिए तो मैंने बोला ना, व्हाट इज द स्मॉल एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन। पहले एक्सटेंशन वाज नॉट दैट, एक्सटेंशन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये मिनिमम हुआ, यानी ये हुआ तुम्हारा लोअर लिमिट, ये हुआ तुम्हारा अपर लिमिट, ये हुआ एट अ पर्टिकुलर एक्सटेंशन। तो फॉर अ सर्टेन एक्सटेंशन एक्स द फोर्स इज स्मॉल। तुम्हें पूछा और तुम आंसर दे रहे हो और यहाँ पे गलत कर दिया। If the extension is small x, corresponding force is small f. It has to be less than that. What exactly is small f? सर आपने मटेरियल चेंज नहीं किया तो y वैसे का वैसे होगा। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा? सर ये तुम्हारा जो भी एक्सप्लेनेशन है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के साथ में है। सर अभी एक्सटेंशन क्या होगा? सर ई की जगह पे x आएगा। सर ओरिजिनल लेंथ तो सेम रहेगा, l ही रहेगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. all of y'all now what am I doing? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वार को यहाँ से मैं और थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहा हूँ। देखो तो मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ पे वार को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ एंड दिस एक्सटेंशन सपोज इफ आई कीप इट वेरी स्मॉल, तो कैन आई से इफ द एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल, ध्यान से सुनना, वार यहाँ पे था, मैंने वार को यहाँ पे लिया, एवरीबॉडी से केयरफुली, ये तुम्हारा dx हुआ, यानी मेरा अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ गया, तो एक फोर्स तो क्रिएट हुआ ना, रिस्टोरिंग फोर्स। एग्रीड? ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स हुआ। रिस्टोरिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ व्हेन आई डिस्प्लेस द वार टू dx, am I doing some work in displacement? Friends, am I doing some work in this displacement? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अगेंस्ट which force? अगेंस्ट कौन सा फोर्स? अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। वार नीचे जा रहा है, हम लोड की वजह से वार को खींच रहे हैं, तो वी आर परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। यानी अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला कि मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर dx है, वो देखो dx है, तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड? वेरी स्मॉल फोर्स df। लेकिन उस टाइम पे करस्पॉन्डिंग फोर्स f भी तो एक्ट हो रहा है ना, साथ में f भी तो था ना, Yes, यहाँ से sir. यहाँ पे f भी तो था ना। What about in this case? What about the force I'll consider will be? यानी ये तुम्हारा इतना छोटा फोर्स होगा, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा इतना छोटा फोर्स होगा तो तुम इसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो what about the work done? So the work done is very small. What's the formula for work done? What's the formula? So work done is equal to applied force into displacement. क्या ये क्लियर हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. Is applied force and displacement are in the same direction? Where is the displacement? Downwards. Where is the applied force? Downwards. Work is what? Dot product. When I remove dot product, I'm getting cos of 0. Cos of 0 क्या बन जाएगा? 1. So work done is equal to applied force into displacement. क्या ये clear हुआ students? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन तुम्हारा जो applied force है, it is equal in magnitude and opposite in direction to which force? Restoring force. Yes, sir. Are you getting it? Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. That means we are doing work. Therefore, work is done against the restoring force. ये जो work किया ना, that gets stored into energy. That gets stored into energy. अभी हम find out करेंगे work done. तो work का formula क्या होगा? आंसर देखिए students. So work done is equal to applied force into displacement. What's the formula for applied force? ये देखो. Can I put this formula as applied force? हाँ सर, applied force का तो formula ये है. ये small f है तो ये भी small f है. Actually force क्या था? F plus df. F plus df. लेकिन is df very large or very small? Very small. तो इसको मैंने neglect कर दिया. F into dx डाल दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरा applied force क्या होगा? ध्यान से सुनना. Y a x upon L into dx. But students, are we trying to find out work done for small displacement? Are we trying to find out work done for small displacement? Or are we trying to find out work done for the total displacement? Total displacement. कहाँ से कहाँ तक? ऋषि कहाँ से कहाँ तक? तो बोलेगा सर इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, यानी इंटीग्रेशन 0 to w, इनिशियल लिमिट x is equal to Yes, sir. 0 to x is equal to e. आ गया तुम्हारा. Yes, sir. So what is integration of dw? W minus 0 क्या आंसर आएगा? Work done. This work done, this does work, or this work done is against a restoring force and gets stored in the form of which energy? Potential energy. Potential energy. Elastic potential energy. क्योंकि potential energy बहुत सारी होती है students. Elastic potential energy, gravitational sir. potential energy, magnetic potential energy, electrostatic potential energy. बहुत सारे potential energy, mechanical potential. ये कौन सा? Elastic potential energy. तो can I run work done is equal to U? Work and energy are correlated. Work energy power में पढ़ चुके हो तुम लोग. And that is equal to what? Yes, sir. सर यहाँ पे y कांस्टेंट आएगा. हाँ सर, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो सर, एरिया चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ग्राफ के हिसाब से प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही आप हमें समझा रहे हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हो आप. सर ओरिजिनल लेंथ भी कांस्टेंट था. अभी क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x into dx होगा फ्रॉम 0 to e. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x into dx? X square by Square by 2. x square by 2. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज e. तो व्हाट इज द वर्क डन? Yes, sir. इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. अभी तुम निकालो आंसर, तो क्या होगा सर? हाफ y a x, ये तो क्या लिखोगे? e square minus 0 square, upper limit minus lower limit. तो कहना है इसमें आंसर भी y e into e. Yes, sir. ये आंसर किसमें होगा? जूल में होगा. ये फॉर्मूला आ गया. अभी तुम उसको ध्यान से लिखोगे तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये किसका फॉर्मूला है? सॉरी, बाय एल. एल भी आएगा नीचे अपॉन एल. ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? y a e by l. ये किसका फॉर्मूला? फोर्स. कौन सा फोर्स? मैक्सिमम. तो कहने से अभी तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ गया? अरे हाँ सर, इज इक्वल टू हाफ इनटू फोर्स मैक्सिमम, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग फोर्स, multiplied by what? E. What does E stand for? Elongation. And this answer will be in what? Joule. So what's the formula for work done? What's the formula for work done? So work done is equal to potential energy, that equal to half into stretching force into elongation. क्या ये डेरिवेशन क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. जब भी तुम करोगे ना स्टूडेंट, तो अपने आप कर सकोगे. थोड़ा सा इसको सिर्फ देखो. हम पहले टोटल इलॉन्गेशन के लिए दो फॉर्मूला लिख दिया. ई है तो एफ है, एफ का फॉर्मूला डाल दे भाई. लेकिन मुझे मूड हुआ कि मैं एक्स तक जाऊं, तो उसके लिए मेरा एफ होगा. जो इससे कम होगा तो उसका फॉर्मूला का तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा. लेकिन मैंने यहाँ से एक छोटा सा और डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो उसके लिए मेरा फोर्स क्या होगा? एफ प्लस डी एफ.
लेकिन ये df इतना छोटा है तो इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं. तो व्हाट इज द वर्क डन? एक्चुअली अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए? F plus df होना चाहिए, लेकिन df छोटा है, उसको निगलेक्ट कर दो. डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना किया? dx ही किया. अभी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ऑफ कोर्स तो cos of 0 1 हो जाएगा. लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो अगेंस्ट विच फोर्स? अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स. ये जो हम लोग ने काम किया है that gets stored in the body in the form of which energy? Potential energy. तो हम किसका आंसर निकाल रहे हैं? Elastic potential energy. दूसरा नाम क्या मैंने लिखा है? Strain energy या work done in stretching the wire. यानी जब भी MCQs होंगे स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने पूछा what's the formula for work done in stretching the wire? Half into F into E. What is strain energy का formula? Half into F into E. What's the formula of elastic potential energy? Half into F into E. तो यहाँ पे तुमने वर्क डन कर लिया. 0 to W, 0 to E, मैक्सिमम एलोंगेशन. कांस्टेंट टर्म्स को निकाल दिया, x square by 2. आ गया तुम्हारा आंसर. Is this clear with all of you all? Yes, sir. Yes. So Daksha, Swalinki, next lecture will be continuing further. Okay. Hope it's clear to all of you all. Yes, sir. Fine. Shall we wind up now? Yes, Next sir. lecture, we'll revise the formulas also. Okay. And don't worry, we'll do maximum problems. Okay. Solve भी करेंगे हम लोग simultaneously. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. Because see, hardly you all have started with me. जो पहला चैप्टर है तो आधा शुरू किया था, तो आधे को मैंने कंप्लीट किया. अभी मुझे पूरा चैप्टर मेरे साथ में आ गया. So we'll gradually build up. Don't worry about that. Okay. Don't worry, you all are into safe hands. Okay. Chalo, bye. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Thank you.